पता चल जाए। So there are two type of differentiation. Our topic is partial differentiation. So ये आपने सुना होगा what is the meaning of partial differentiation? Differentiation तो सभी ने सुनी होगी. Same formula we use here in partial differentiation. ठीक है? So in case of differentiation, 10 minutes में मैं लूंगा रिवाइज में, उसमें आपने देखना है. Suppose ये होता है डिफरेंशिएशन, इसको बढ़ते रेट ऑफ चेंज ऑफ y dy by dx, rate of change of y with respect to x. So this is the symbol or notation of differentiation dy by dx. So in the partial differentiation में क्या होता है, करली, ऐसे करली y ऐसे लिखा हो, करली y by करली x. ठीक है, और इसको बोलते हैं डेल्टा y by डेल्टा x. So this is the symbol or notation of partial differentiation. ये differentiation होती है. Now what is the difference between these two? What is the difference between the total DC differentiation and this partial differentiation? इस केस में ना y is a function of x होता है. ठीक है, y is a function of x. So ये y कौन सा वेरिएबल होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल. तो x पर क्या करता है, डिपेंड करता है. In this case y is dependent variable and this x is independent variable, and this x is independent variable. ठीक है, so if there is only one independent variable, ठीक है, किसी भी केस में when there is only one independent variable, in that case we use differentiation, that means dy by dx. This is the definition of this. ठीक है, but in this case suppose z is a function of now two variables, suppose x and y. Z is a function of suppose two variable, or suppose u is a function of, suppose u is a function of three variables, suppose x, y and z, anything. ठीक है, suppose ऐसे r is a function of s, t and p, anything, any function. So in this case these are dependent variable, yeah, du and r, and these are independent variable. There are two independent variable, there are three independent variable, and there is also three independent variable. Or you can say that suppose v is a function of u, r, s and p, anything. So in this case there are four independent variable. So when there is only one independent variable, then we use differentiation. So when there are two or more than two independent variable, then we use partial differentiation. Now any problem in definition of differentiation and partial differentiation? So very simple definition, if there is only one independent variable, then we use differentiation. If there are two or more than two independent variable, then we use partial differentiation. Any problem to anyone? Okay? No sir. Yes sir. Now what is the process to do part? ये आपने किया हुआ differentiation, ठीक है? Now what is now in this case what is how to do partial differentiation? Suppose now z is a function of, for this two variable x square, for this x square minus xy, suppose plus y square, suppose. Okay, so now z is a function of two variable x and y. Suppose curly z by curly x करना है, curly z by curly x. This is important only, curly z by curly x. इसको पढ़ते कैसे हैं? We say partial differentiation of z with respect to x. जहाँ इसको पढ़ते हैं डेल्टा z by डेल्टा x, curly z by curly x, और लैंग्वेज में पढ़ते हैं partial differentiation of z with respect to x. So what is the method of partial differentiation? When we partial differentiation with respect to one variable, अब सिर्फ किससे कर रहे हैं, x से, then all other variables are constant. So when we partial differentiate with respect to one variable in case of partial differentiation, then all other variable, इसमें कितने variable है, two variable x and y, हम partial किससे कर रहे हैं, x से. So we take y as a constant.
तो मोटा मोटा डिफरेंस क्या है, जब आप ऐसे क्वेश्चन पढ़ते थे y इक्वल टू एक्स स्क्र 2x प्लस 3 ऐसे क्वेश्चन करते थे, तो जब हम इसकी डिफरेंशिएशन करते थे, व्हेन वी डिफरेंशिएशन, सो एक्स स्क्र की आप 2x करते थे. So in this case, these are constant. 2 and 3 are constant. Constant like this. 2 and 3 are constant. तो इसकी कितनी आती थी x, और constant की डिफरेंशिएशन कितनी होती थी 0. ठीक है ना, सॉरी 2. 2 x की 1 होगी, 2 साथ में लगा रहेगा. तो बट इन दिस केस व्हेन वी पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, हम फिर y को क्या लेके चलेंगे. नाउ अदर वेरिएबल, जितने भी अदर वेरिएबल होंगे, दीज आर कांस्टेंट. नाउ इसको हम कांस्टेंट ट्रीट करेंगे. सो इसकी विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं, तो x स्क्वायर की कितनी हो जाएगी 2x माइनस x की 1 हो जाएगी, x की 1 y, और y इसकी क्या हो जाएगी 0. So this is partial differentiation. So when we partial differentiation with respect to one variable, then all other variables are constant. All other variables are constant. मतलब डिफरेंशिएशन में आपको कांस्टेंट ऐसे दिखते हैं 2, 3, 5, 7. इस केस में जो दूसरा वेरिएबल होगा वो कांस्टेंट हो जाएगा. इसकी थोड़ी और एग्जांपल लेते हैं. वो u इक्वल टू लिया हुआ x क्यूब y z माइनस z स्क्वायर x प्लस y क्यूब. सपोज एनी फंक्शन. नाउ u कितने वेरिएबल का फंक्शन है. u इज ए फंक्शन ऑफ 3 वेरिएबल. नाउ मैं करना चाहता हूं पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू y. पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू y करना चाहता हूं. तो जब मैं y से करूंगा, इसका मतलब मेरा x भी कांस्टेंट हो गया और z भी कांस्टेंट हो गया. सो दिस इज अ डेफिनेशन. when we partial differentiation with respect to one variable, then all other independent variables are constants. So other variables are constants. So अब y से करेंगे, इनको देखेंगे ही नहीं. अगर साथ लगे तो साथ ही लगे रह जाएंगे. तो y की कितनी हो जाएगी 1. So we get x cube into z. So there is no y. There is no y. So this is constant plus. So in this case 3y square. 3y square. Okay. So this is a partial differentiation of u with respect to y. So mota mota hai, when we partial differentiation with respect to one variable, then all other variables are constant. Okay. Constant. Now any problem to this? यहाँ तक okay? Yes, sir. अब ये मोटा मोटा अब क्लियर हो गया. फिर हमने ना फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव होते हैं, ये मैं करा चुका हूँ फर्स्ट लेक्चर. ये थोड़ा सा रिवाइज करा दिया मैंने. फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव, फर्स्ट ऑर्डर, फिर आज शुरू कर देंगे नया फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव. आपने सिर्फ कंसेप्ट क्लियर करना है, और मैं आज 10 to 15 क्वेश्चन दूंगा. उनको आपने सभी ने जितने भी क्वेश्चन होंगे इसमें आपने निकाल के देखने सारे. फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव एंड सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव, ये आपको क्वेश्चन आता है. फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव एंड सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव कौन से होते हैं. फर्स्ट ऑर्डर अमृतसर कैंपस से कोई बताए कौन से होते हैं फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव. पी क्यू. these are small p and small q. ठीक है. p and q are first order partial derivative, and second order क्या होते हैं r S T. and t. ठीक है. so now what is this p q r s t. ठीक है. so by default अगर कुछ भी नहीं दिया हो, अगर आपको पता है ना डिफरेंशिएशन में by default हम we take y as a function of x in case of differentiation. by default लेते थे ना, उसमें मोस्टली हम y की ही डिफरेंशिएशन करते थे. x में मोस्टली डिफरेंशिएशन इक्वेशन भी हो जैसे मर्जी हो. तो इसका मतलब बाय डिफॉल्ट वी टेक y एज ए फंक्शन ऑफ x. इन केस ऑफ पार्शियल डिफरेंशिएशन अगर कुछ ना दिया हो तो बाय डिफॉल्ट वी टेक z इज ए फंक्शन ऑफ x एंड y बाय डिफॉल्ट. सो बाय डिफॉल्ट होता है, जैसे ये होता है ना y इज ए फंक्शन ऑफ x. ये चेंज भी हो सकता है. बाय डिफॉल्ट जो अगर कुछ नहीं दिया तो ये लेना है मतलब. ठीक है. z इज ए फंक्शन ऑफ x एंड y. तो p स्मॉल p होता है जब हम पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ z की विद रिस्पेक्ट टू किससे कर देते हैं. z की पार्शियल डिफरेंशिएशन किससे कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो वो होता है p. q क्या होता है. q होता है जब z की पार्शियल डिफरेंशिएशन हम किससे कर देते हैं Y से. ठीक है. r मतलब होता है r
आर का मतलब होता है डबल डिफरेंशिएशन। जेड की 2 बार डिफरेंशिएशन कर दो पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स के, दैट इज आपका जेड आर। और एस होता है, करनी 2 बार है, डबल है ना, 2 बार में 2 बार होगी, 2 बार होगी दिस, तो पहले बार एक बार एक्स से फिर वाई से, एस होता है डबल डिफरेंशिएशन। ठीक है, और टी बच गया, बाय डिफॉल्ट टी क्या होगा, टी क्या होगा, डबल डेरिवेटिव ऑफ जेड विद रिस्पेक्ट टू एक्स से हो गया ना, विद रिस्पेक्ट टू वाई स्क्वायर। Curly X, curly Y. So these are the first order partial derivative and second order partial derivative। कई बार लिखा आता है फाइंड फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकंड ऑर्डर partial derivative, और कोई भी आपको फंक्शन देता है तो आपने ये फाइंड कर देना P Q R S and T। So these are first order derivative and these are the second order derivative। ये S का थोड़ा सा ध्यान रखना, S कितना मैंने लिखा था, partial differentiation of Z, partial differentiation of Z with respect to X and Y। ये थोड़ा सा ध्यान रखना होता है, ये राइट टू लेफ्ट चलना है आपने हमेशा ही। राइट टू लेफ्ट का मतलब इसको, अगर इसको सॉल्व करना है ना, तो सबसे पहले आपने जेड की डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू वाई करनी है। इसको सॉल्व कैसे करना है, इधर से इधर चलना है, पहले वाई की डिफरेंशिएशन करनी है, जो आंसर आ जाएगा उसकी दोबारा किससे करनी है, एक्स से करनी है। सो ये याद रखना, राइट टू लेफ्ट चलते हैं, मतलब पहले इसको खत्म करते हैं फिर आगे आगे सो ऑन। इसका मतलब ये है कि करनी 2 बार ही डिफरेंशिएशन है, पहले किससे करनी थी, जेड की विद रिस्पेक्ट टू वाई करनी थी, जो भी आंसर आएगा उसकी विद रिस्पेक्ट टू किससे करनी है, एस से, एक्स से करनी है। सो दिस इज ऑल फर्स्ट ऑर्डर एंड पार्शियल ऑर्डर डेरिवेटिव। नाउ एनी प्रॉब्लम अप टू दिस स्टेप? सो till now we discussed what is the difference between differentiation and partial differentiation and what is the method to solve partial differentiation। अब इसके बेस पे हम क्वेश्चन करेंगे, सारे फार्मूले वही रहेंगे सारे डिफरेंशिएशन के, पिछले फार्मूले, और वो साथ साथ जब क्वेश्चन आएंगे तो आपको होते रहेंगे। नो एनी प्रॉब्लम अप टू दिस स्टेप? ओके, चलो फिर आगे करते हैं हम। किसी ने पूछना है बेटा कुछ? पूछना है तो नहीं है किसी ने कुछ? नो सर। चलो फिर अब आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन। ये जो मैं आपको आज भेजूंगा ये क्वेश्चंस, ठीक है, इसमें लिखने वाला अपनी कॉपी साथ रखनी, कंसेप्ट होंगे। ये कितनी एग्जांपल्स हैं देखो, सारी 4 कितनी 10 to 15 एग्जांपल्स होंगी। इसमें से मैंने 1-2 एग्जांपल आज करा देनी है, कंसेप्ट बताना है आपको, कंसेप्ट की मतलब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पार्शियल डिफरेंशिएशन। तो आपने कभी भी इसका रोज का एक क्वेश्चन निकालना है, सारे इकट्ठे करने की कोशिश नहीं करनी है इसको। जब भी आपको टाइम, करने सारे हैं, ठीक है, करने सारे हैं, कोई भी एक दिन एक क्वेश्चन उठा के बैठ जाना है। ये सारे इंपॉर्टेंट है, ये सारे वही हैं जो पेपर्स में आए हुए हैं, वही क्वेश्चन इसमें लिए हैं कि जो बार बार जो पिछले 10 ईयर्स जितने भी क्वेश्चन पेपर उसमें आए हुए हैं वही क्वेश्चन है सारे। तो जितने भी होंगे सभी के आगे पीटीयू लिखा ही होगा, ऑलमोस्ट जितने भी क्वेश्चन देखोगे ना आप सभी के आगे लिखा ही होगा, ठीक है। तो मोर देन सफिशिएंट है अगर आप ये सारे क्वेश्चन कर लोगे, ठीक है। तो ये थोड़े से लेंथी होते हैं, सो बेटर होता है कि रोज का 1-2 क्वेश्चन करो, ज्यादा अगर जो कर सकते हैं, अगर कोई और लेक्चर नहीं लग रहे तो वो कर लेना, ठीक है। कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, ये तो आपको इसमें आपके हर तरह का क्वेश्चन आ जाएगा। फॉर एग्जांपल हम फर्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं, देखना फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। दिस इज अवर फर्स्ट क्वेश्चन, देखना ध्यान से। दिस, ये देखो सारे ही आए हुए हैं, मैंने वही वही कट कट करके डाले हुए सारे, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, ध्यान से देखना क्या करना है आपने। तो इफ जेड इज, कितने फंक्शन दिया हुआ है, जेड इज ए फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल एक्स एंड वाई। हम क्या प्रूफ करना चाहते हैं, करली जेड बाय करली एक्स, एक्स इंटू प्लस वाई इक्वल टू, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू भरेंगे तो राइट हैंड साइड हम लेके आना चाहते हैं, ठीक है। तो इसके लिए आपको सिर्फ चाहिए लॉग की डिफरेंशिएशन। लॉग की डिफरेंशिएशन आती है बेटा सभी को? डिफरेंशिएशन के फार्मूले नहीं आते होंगे तो मैं आपको, आते हैं डिफरेंशिएशन के फार्मूले सभी को, जब बताऊं साथ साथ। डिफरेंशिएशन का फार्मूला अगर किसी को नहीं समझ लगता तो ये डिफरेंशिएशन का फार्मूला होता है। लॉग की डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, लॉग की डिफरेंशिएशन क्या कहते हैं, जो भी यहाँ लिखा हो फंक्शन वो नीचे आ जाता है, और साथ में उसी वेरिएबल से, जिस वेरिएबल से करेंगे, और अंदर अंदर वाली चीज की
डेरिवेटिव। ठीक है, मैंने कुछ भी वैसे डाल दिया एनीथिंग। तो जिसको नहीं आता था, दिस इज अ फार्मूला फॉर लॉग। ठीक है, क्लियर है ना? फार्मूला यही होता है ना लॉग का फार्मूला, 1 बाय जो भी Yes, यहाँ sir. लिखा हो दिस एंड डिफरेंशिएशन ऑफ दिस थिंग। अब ये फार्मूला लॉग था, लॉग का था। तो सो पहले हम इसका करने जा रहे हैं करली जेड बाय, हमको दो वेरिएबल चाहिए, करली जेड बाय करली एक्स चाहिए, ये करली जेड बाय करली वाई चाहिए। ये दोनों डेरिवेटिव हम निकालेंगे और यहाँ वैल्यू पुट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में, और हमको आंसर कितना चाहिए? राइट हैंड साइड में क्या चाहिए? आंसर चाहिए 2। प्रूफ डेट ये होता है लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये जेड दिया हुआ आपका, इसका करली जेड बाय करली एक्स करेंगे, करली जेड बटा करली एक्स। So when we partial differentiation with respect to one variable, then all other variables are constant. एक मिनट बेटा, एक मिनट। सो ये डिफरेंशिएशन करने जा रहे हैं, तो ये log का क्या आएगा? 1 बटा, आपने, मैं बस आपको बोल रहा हूँ कि इसमें क्वेश्चन की लिमिट नहीं, आपने कंसेप्ट क्लियर करने हैं बस। तो प्रैक्टिस के लिए इतने क्वेश्चन बेस्ट है, इससे ज्यादा करोगे तो टाइम भी वेस्ट होगा। तो कितना आएगा? जो भी log के अंदर लिखा होता है, दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, और साथ में किसकी डिफरेंशिएशन करनी है? साथ में किसकी डिफरेंशिएशन करनी है आपने? विद रिस्पेक्ट टू एक्स ही कर रहे हैं, जो अंदर लिखा हो। सीधी कर दूं? एक्स स्क्वायर यस सर। एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। कंसेप्ट क्लियर हो गया? चलो मतलब व्हेन वी पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स देन वाई इज कांस्टेंट, तो एक्स स्क्वायर की कितनी होगी? 2x। कितनी होगी? 2x प्लस, और x की 1 होगी, y और दूसरी y की 0, 2x प्लस y बटा दिस इज एक्स स्क्वायर plus x y plus y square. एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। सो ये आपका निकला करली जेड बाय करली एक्स। तो हमने ये चीज निकाल ली, करली जेड बाय करली एक्स। सिमिलरली वी फाइंड करली जेड बाय करली वाई, करली जेड बाय करली वाई करेंगे अगेन इसकी, अब इसी की दोबारा विद रिस्पेक्ट टू वाई करनी है, तो 1 बटा अगेन दिस एक्स स्क्वायर एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, और इसकी अब विद रिस्पेक्ट टू वाई करनी, इसकी विद रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे, इसकी 0 आ जाएगी, इसकी कितनी आ जाएगी? एक्स प्लस कितनी आ जाएगी? एक्स प्लस 2y। ठीक है, तो ये होगी आपकी डिफरेंशिएशन। अब आपने क्या करना है? इसको x से मल्टीप्लाई करना है, इसको किससे मल्टीप्लाई करना है? इसमें वैल्यू भरनी है ना, इसको x से मल्टीप्लाई करके इसको y, डिनोमिनेटर सेम रहेगा। अब थोड़ा सा दिखना शुरू हो गया होगा, इसको जब x से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा? 2x स्क्वायर। डिनोमिनेटर सेम है ना, 2x स्क्वायर, इसके साथ कितना आ जाएगा? एक्स वाई। इसको y से करना ना, y से मल्टीप्लाई करना है, तो इसमें कितना आ जाएगा? एक्स वाई वाई, और कितना आ जाएगा? 2y। 2y square. आपने पूरा करना, डिनोमिनेटर सेम है तो डिनोमिनेटर सेम ही रहेगा, डिनोमिनेटर में कोई चेंज नहीं आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस, सिंपल है, बस आपको कंसेप्ट क्लियर होगा, जितने मर्जी क्वेश्चन निकाल लो। ठीक है, तो ये 2x स्क्वायर, ये भी 2x वाई हो जाएगा, वाई स्क्वायर 2 कॉमन निकल जाएगा, नीचे से ऊपर वाला कट देगा, तो आंसर कितना रह जाएगा? Cancel. कितना आंसर रह जाएगा? 2। क्लियर है? ये एक्स वाई प्लस एक्स वाई कितना हो जाएगा? 2x वाई। तो यहाँ भी 2 होगा, यहाँ भी 2 होगा, यहाँ भी 2 होगा, 2 कॉमन निकल जाएगा, तो बचेगा यही एक्स स्क्वायर एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, वो ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा एंड वी गेट 2। एनी प्रॉब्लम यहाँ तक? ओके? Yes, sir. Yes, sir. दूसरा क्वेश्चन ये, इसको भी ऐसे लिख सकते हैं, u है, सो इट कैन बी राइट ई बेस सेम पावर कैन बी, इसको ऐसे लिख लें, अगर सिंपल करने के लिए ऐसे लिख लेंगे ई एक्स स्क्वायर इंटू ई वाई स्क्वायर, ऐसे लिख लेंगे, लिख सकते हैं ना? वी कैन राइट दिस। Yes. सीधा भी चाहो तो सीधा भी लिख सकते हैं, ऐसे करना, सीधा ही कर लो, चलो ऐसे मत करो। अब ई की डिफरेंशिएशन का फार्मूला क्या होता है? ई की पावर का, ई की पावर का फार्मूला क्या होता है? ई की पावर जो भी है एज इट एंड डिफरेंशिएशन ऑफ इसकी, डिफरेंशिएशन ऑफ पावर, यही होता है फार्मूला डिफरेंशिएशन का।
ठीक है। तो Yes, ये yes. आपने फार्मूला यहाँ लगाना, अगेन सेम क्वेश्चन, यहाँ दोनों निकालने u बाई एक्स और v बाई एक्स, तो लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू बननी है और आपका आंसर ये आना चाहिए, आ जाएगा। ओके, कर लोगे थे? Yes, sir. सिमिलरली इसकी आपने प्रैक्टिस करनी, तो ये 4th क्वेश्चन हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये सेम ऐसे ही हो जाएगा आपका दिस क्वेश्चन। इसमें आपने मेरे को बताना ही है क्या करना है, बाकी करने अपने आप ही है। देखो ये u दिया हुआ है, ये u दिया हुआ है एक्स के प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर -1/2। तो आपने इसमें भी प्रूव करना है, इसकी u की 3 बार करनी है, u की रिस्पेक्ट टू x करनी है, u की रिस्पेक्ट टू y करनी है, u की रिस्पेक्ट टू z करनी है। तो आपको इसकी डिफरेंशिएशन आनी चाहिए, इसके लिए ax प्लस b की पावर n की क्या होती है डिफरेंशिएशन, पावर वाली की। पावर वाली की डिफरेंशिएशन क्या होती है? Sir, पावर power आगे आगे आ जाती 10 पावर आगे आ जाती है। पावर एक में कम हो से जाती 1 पावर में से Minus. 1 सब्ट्रैक्ट एंड अगेन डिफरेंशिएशन ऑफ जो ये अंदर वाला होता है इस ax प्लस b। सो वी यूज दिस फार्मूला ओनली। ठीक है, तो एक बार x से करेंगे, एक बार y से करेंगे, एक बार z से करेंगे। जैसे ये देखो कर्ली u बाय कर्ली x कर रहा है, पावर कितनी है, पावर आगे -1/2 आगे, पावर में से एक कम -1/2 -1 कितना बनेगा ये Minus. -3/2 ये पर। और अंदर वाले की डिफरेंशिएशन किससे करनी है, विद रिस्पेक्ट टू पहले x। x से इसकी 0 हो जाएगी, इसकी भी 0 हो जाएगी, कितना बचेगा 2x। ये 2 आपस में इसने कैंसिल कर दिया, तो ये बनेगा -x। दिस इज द डिफरेंशिएशन। सिमिलरली उसकी भी कर सकते हो आप सिमिलरली। ठीक है, सिमिलरली यहाँ क्या आ जाएगा, y आ जाएगा, बाकी सेम। सिमिलरली z आएगा, बाकी सेम। और दोनों को जब सारी वैल्यू आप लेफ्ट हैंड साइड में भरोगे तो देखना ना सारा कुछ कैंसिल होके, देखो सिमिलरली। ठीक है, ये सारी वैल्यू जब इसमें भरोगे तो कैंसिल होके जो आपको आंसर चाहिए वो मिल जाएगा। ठीक है, एनी प्रॉब्लम इन दिस? ओके, Yes, sir. Yes, sir. अब जिस बच्चे से मैं पूछूंगा ना वही जवाब देगा। ठीक है, इसमें मैं देखना चाहता हूँ कि आप लोगों को पार्शियल, ये क्वेश्चन मैं आप लोगों से इसलिए पूछ रहा हूँ, अगर ये लेक्चर का लिंक खत्म हो जाएगा ना तो मैं साथ ही दूसरा लिंक भेजूंगा, आपने उसको ज्वाइन करना। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं उसी से जो बच्चे जिसका नेम लूंगा वही बताएगा कि मैं ये पूछना चाहता हूँ कि इसकी आपको डिफरेंशिएशन समझ लगी है कि नहीं लगी। ठीक है, नाउ दिस u इज ए फंक्शन ऑफ 3 वेरिएबल। एज u दिया हुआ है, x स्क्वायर टू y माइनस जेड प्लस y स्क्वायर टू जेड माइनस एक्स एंड जेड स्क्वायर टू x माइनस वाई। सो मैं करना चाहता हूँ कर्ली u बाय कर्ली x करना चाहता हूँ। ठीक है, सो अगेन मैं लाइन बोल रहा हूँ, when I partial differentiation of u with respect to x, then all other variable, it mean y and z are constants. ठीक है, any problem in this line? This line is okay? No, sir. Yes, sir. So अब बोलेगा हाँ जी बाल मुखद, जी सर। अब बोलो डिफरेंशिएशन इसकी, x से बोलो। सर तो x से होगा तो ये हो जाएगा आपका, बाकी कांस्टेंट तो 2x इंटू वाई माइनस जेड प्लस, फिर यहाँ पर जाएंगे हम तो ये हो जाएगा, इसको थोड़ा सा तोड़ देंगे तो बेटर रहेगा आई थिंक। या हम एक भी यहाँ पर लिख सकते हैं, z-1 भी मान सकते हैं और बाकी चीजें कांस्टेंट। तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर जेड माइनस वाई स्क्वायर, सीधे सीधे वाई स्क्वायर जेड माइनस वाई स्क्वायर जेड नहीं आएगा ना जी, या वाई स्क्वायर X- जेड माइनस 1 x हम की करनी है मान ना, x सकते हैं। इसकी 0 हो जानी है। y स्क्वायर। ठीक है, ये सही जी लिखा है सर, जी मैंने। सर कांस्टेंट है ये, कांस्टेंट। जी सर ये कांस्टेंट है, ये तो वाई स्क्वायर जेड तो फिनिश ही हो जाएगा इसमें एक्चुअली। एक्स के चलो साथ जब ये जो वाई बचा हुआ है, जी अगर जी आपको किसी को प्रॉब्लम वाई आती है ना, बचेगा इसको सर, वाई मल्टीप्लाई बचेगा कर जी, लेना, समझेंगे पहले मल्टीप्लाई कर लेना जी, y मल्टीप्लाई स्क्वायर करके अच्छा रहेगा वही सर, जी जी उचित अगर रहेगा वही, चलो जिसको वैसे नहीं दिक्कत हो सकती है। समय लगती है वो एक स्टेप और कर लेना, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लेना। तो व्हेन वी पार्शियल डिफरेंशिएट दिस विद रिस्पेक्ट टू x, इसमें x है नहीं तो 0 हो जाएगा, या x की 1 जी मैंने ये सीधा कट लिख दिया जाएगा, माइनस वाई स्क्वायर। सिमिलरली इसको भी अगर किसी को, हो जाएगा उसी तो तरह से। चलो आप पहली बार कर रहे हो तो आप बेटर करना कि इसको आप मल्टीप्लाई ही कर लेना,
फिर आपकी गलती के चांसेस नहीं रहेंगे। ठीक है, इसकी 0 हो जाएगी और प्लस जेड स्क्वायर। ओके, ठीक है, एनी प्रॉब्लम? ये थोड़ा सा अलग था ना, इसलिए वे इसको करना अगर ये क्वेश्चन करोगे 6 क्वेश्चन, तो इससे आपके जो पूरा कंसेप्ट है कि व्हाट इज द मीनिंग, रियल मीनिंग ऑफ पार्शियल डिफरेंशिएशन, वो आपका अच्छी तरह क्लियर हो जाएगा, कि आपको पूरी तरह क्लियर हो जाएगा कि क्या मीनिंग क्या है, कि कैसे एक वेरिएबल को कांस्टेंट करते हैं, वो सारा कुछ इसमें क्लियर हो जाएगा। क्लियर है? एनी प्रॉब्लम इन दिस? ओके, नो सर। ऐसे No, विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे, ऐसे विद रिस्पेक्ट टू क्या करेंगे, z करेंगे, तीनों आंसर को ऐड करेंगे, वो सारे आपस में कटे जाने चाहिए, नहीं भी कटे तो काट देने, कोई बात नहीं। ठीक है, सारे काट देने हैं और आंसर कितना आएगा, 0, कटने ही चाहिए, मतलब पेपर की बात कर रहा हूँ, कभी बंदा टेंशन में इधर उधर हो जाता है, तो आपको पता ही है थोड़ा कटे ही जाने। ठीक है, सिमिलरली ये क्वेश्चन है इसका आगे, सिमिलरली दिस अगेन u इज अ फंक्शन ऑफ 3 वेरिएबल, बताते हैं ना जहाँ प्रॉब्लम हो, अगेन पार्शियल डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू y, विद रिस्पेक्ट टू z, तीनों वैल्यू यहाँ भरेंगे और हमारा आंसर कितना चाहिए, 3u। सिमिलरली ये ऊपर किया ना सेम u वाला, ये सेम क्वेश्चन 6, नो प्रॉब्लम, ये भी सेम है। ठीक है, 6 क्वेश्चन भी ये सारे आपने इसको प्रैक्टिस कर, मैंने रोज बोला कि रोज एक करना, दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर जिसने अपनी डिफरेंशिएशन की पावर चेक करनी कि आपको डिफरेंशिएशन भूल तो नहीं गई, तो ये क्वेश्चन आपने अपनी तरह करना अपने आप। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो ये नहीं, नॉट इन टर्म ऑफ एग्जामिनेशन, मैं एग्जामिनेशन की टर्म से नहीं बोल रहा हूँ, इसमें आपकी जितनी कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग होगी ना, इस क्वेश्चन से स्ट्रॉन्ग होगी। ठीक है, तो क्या दिया हुआ ना, थीटा इज ए फंक्शन ऑफ वेरिएबल, कि थीटा कितने फंक्शन का वेरिएबल दिया, एनीवन? थीटा डिपेंडेंट होगा कितने, किसका फंक्शन दिया हुआ थीटा, एनीवन? कौन से 2 वेरिएबल हैं? T और R। हाँ, टी और आर। ठीक है, अब देखो इसको करना है आपने, इसको कैसे करना है देखो, कौन बताएगा इसके लिए, ए लेफ्ट हैंड साइड है, इसके लिए सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा मेरे को, कौन बताएगा स्टेप क्या होगा, पहला स्टेप कौन बताएगा, कहाँ से करना होता है, मैंने कहाँ से शुरू किया, लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट? Right to left. Right to left। तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा इस क्वेश्चन में? सर सब फर्स्ट क्वेश्चन पहले स्टेप ये होगा, Z by Y। आप पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ जो थीटा की है उससे बड़ा डीआर निकालेंगे, रिस्पेक्ट उसको टू आर किससे स्क्वायर करेंगे, से करेंगे इस तरह से। दिस इज अवर फर्स्ट स्टेप। पहले जो ये थीटा दिया इसकी विद रिस्पेक्ट टू किससे करेंगे, आर से करेंगे, तो टी कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, जो आंसर आएगा उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, आर से क्या कर देंगे, दोनों तरफ आर स्क्वायर। मल्टीप्लाई कर देंगे, जो मल्टीप्लाई करके आएगा उसका आंसर, उसका डेरिवेटिव किससे करेंगे हम, उसकी पार्शियल डिफरेंशियल किससे करेंगे, आर से। आर से करेंगे। तो वेरी लेंथी कैलकुलेशन, जो फिर आंसर आएगा उसको 1/r के से क्या कर देंगे, Multiply. डिवाइड कर देंगे। ठीक है, जब 1/r के मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड आएगी, राइट हैंड साइड तो सीधी है, कर्ली थीटा बाय कर्ली टी। तो समय लगी है, हमेशा कैसे चलना है पार्शियल डिफरेंशिएशन में, Right to left. राइट टू Right to left. लेफ्ट। ठीक है, अब ये आप ये क्वेश्चन सभी ट्राई करेंगे, या मैं एक थीटा विद रिस्पेक्ट टू आर कर दूं, बताओ, थीटा विद रिस्पेक्ट टू आर कर दूं, एक बार आपको पता चलेगा। हमने थीटा विद रिस्पेक्ट टू आर करनी, सपोज थीटा की विद रिस्पेक्ट टू आर करनी है, तो टी वाले को तो देखना ही नहीं है, तो वैसे लगा रहेगा, इसको तो देखना ही नहीं है, ये तो वैसे लगा रहेगा टी की पावर है, ये ई की पावर की डिफरेंशिएशन क्या होती है, ई की पावर सेम रहती है, ई की पावर जितनी भी हो सेम रहती है, और डिफरेंशिएशन किसकी होती है बाद में, पावर की, पावर कितनी है, पावर माइनस आर स्क्वायर बाय, तो इसमें आपकी कैलकुलेशन चेक होगी, तो चेक करनी है सभी ने, वैसे रहेगा, कितनी आएगी विद रिस्पेक्ट टू आर, इसकी रिस्पेक्ट टू आर कितनी आएगी इसकी, -2r upon 4। -2r बाय -r upon 2t। और टी। ठीक है, ये मैंने कर भी दी बस। ओके, ये साथ में वैसे रहेगा। आप ट्राई करोगे इस क्वेश्चन को सभी लोग? यस सर। ठीक है,
अब ये Yes, sir. पार्शियल डिफरेंशिएशन की मतलब थोड़ी सी एप्लीकेशन बताते हैं कि मतलब क्यों यूज होती है। कोई अगर आपसे पूछ ले, सपोज एक कंपनी है, कोई मान लो कोई आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, कोई कंपनी है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी उसकी जो प्रॉफिट है, मान लो कंपनी है, मान लो कोई भी, वो 3 चीज़ों पर डिपेंड करता है। मान लो प्रॉफिट पे डिपेंड करती है, वो प्रोडक्शन प्रॉफिट पे डिपेंड करती है, प्रोडक्शन पे डिपेंड करती है। तो कंपनी में काफ़ी फैक्टर्स हो सकते हैं ना, सेल्स पे करती है, और भी कंपनी के काफ़ी फैक्टर होते हैं, मतलब एम्प्लॉय होते हैं, कुछ भी होते हैं, ठीक है। वो किसी टाइम कह दे कि नहीं, मेरे को सिर्फ रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू किससे निकालना है, प्रॉफिट से निकालना है, मेरे को बाकी फैक्टर का कोई मतलब नहीं है। तो मैंने सिर्फ कंपनी का प्रॉफिट जो है वो, ये ऐसी चीज, मतलब वो चीज तो 3 4 5 चीजों पर डिपेंड करती है, बट जैसे पार्शियल होता है ना, पार्शियल मतलब पार्शियलिटी करना, ठीक है। जैसे इंटरव्यू देने जाते हो आप, कोई मतलब पहले ही सिलेक्शन आपकी हो, तो मैंने अपनी इंटरव्यू में ये क्वेश्चन का जवाब ऐसे दिया था। इंटरव्यू कोई भी होता है ना, पार्शियलिटी करनी, कि आप कुछ नहीं देख रहे, बस आपने एक फैक्टर उठा लिया, उसके हिसाब से आप पार्शियल हो रही हो, ठीक है। तो मैं कंपनी जो ऐसा कितनी चीज़ों पर डिपेंड करती नहीं, वो कहता है कि मैं सिर्फ प्रॉफिट से ही देखना चाहता हूँ इसको, मेरे को बाकी चीज़ों से कोई मतलब नहीं, तो इसको बोलते हैं पार्शियलिटी, ठीक है। फैक्टर्स में बाकी फैक्टर्स को रिमूव कर दिया, तो इस ऐसी केसेस में पार्शियल डिफरेंशिएशन यूज होती है। मतलब जैसे ऐसी कोई सिचुएशन होती है जिसकी लास्ट में हमको क्या मिलता है, जो फंक्शन होता है वो ऐसे मिलता है, तो उसकी पार्शियल डिफरेंशिएशन की जरूरत करनी, ठीक है। तो थोड़ा सा इसका ज़्यादा नहीं है, ये मेन था एप्लीकेशन। नया लिंक भेज रहा हूँ, उसको ज्वाइन करो सभी लोग, लिंक ज्वाइन करो बेटा, सब नया ज्वाइन भेज रहा हूँ।